Hello, students. Hope all of you are quite well and working hard to qualify the exam. I usually prepare the videos to help all of you to build up a knowledge about anthropology. I try to make discussion with you regarding the case studies of anthropologists in the field of anthropology. For example, Alec Morgan studied North American tribe Iroquois. Alec Morgan studied kinship system, religion, family, and he also belonged to classical evolutionism. Alec Morgan studied Iroquois and he wrote a book called Ancient Society. E.B. Tyler also wrote a book, Primitive Culture. Franz Boas studied Quaikutel. You must remember these names of the tribes. Margaret Mead studied Samoa of New Guinea. Ruth Benedict studied Pueblo of Japan. Julian Stewart, who gave ecological cultural ecology, studied Shoshone tribe. In this way, different anthropologists studied different tribes like Yvonne Pritchards studied Azantes and Nures of Africa and wrote a book, Witchcraft, Oracle, and Magic Among the Azande, the Nur. You must remember all this. Why I am repeating sentences again and again? So as you learn in a deep manner. Malinowski studied about the Kula tribe. So Nur was studied by Ivan Pritchards. Malinowski wrote Argonauts of the Western Pacific. Ruth Benedict wrote Age of the Samoa. Coming of age in Samoa was studied by Margaret Mead. Levi-Strauss studied the elementary structure of kinship. So you must write down about British anthropologist Levi Strauss
believed in structuralism, and he wrote a book called The Elementary Structure of Kinship. That is, Levi Strauss was a structuralist. Anthropologists are doing wonderful things to study the society. So, the various anthropologists like G.S. Gure, who studied the racial origin of caste, racial origin of caste says that Aryans came in contact with non-Aryans people and they distributed their culture to them, wanted to keep themselves different from them, so they maintained purity. And how they maintained purity? They performed endogamy. They married in their own group. So it got separate the two groups, Aryan and non-Aryans. So there has to be there the did a lot of work. Varian Alvin also studied the northeastern tribes. G.S. Gore studied the central Indian tribes. Also, they have the contribution of Ananta Krishna Iyer was that he was responsible for setting up of Department of Anthropology in Calcutta University. He studied various societies of South and Anantakriya Iyer was very nationalist. The elementary structure of kinship as studied by Levi Strauss. Yeah, Levi Strauss studied Brazilian tribes. So, structuralism, he studied the deep structures of mind that shapes human thoughts, that shapes the society. What human thoughts, how people think, what is the culture of the people depends upon the universal pattern, the deep structure going on in the brain. So he said that there is a similar mental structure, deep structure, and that contributed to culture. So the elementary structure of kinship is said that there is uh, a system of exchange. That is why there is kinship. So marriage is happens in kinship, and they adopted alliance with them.
show network, build up network. So it is a system of exchange. It is not just uh, biology. It is a exchange takes place through marriages and they build social bonds among them. There is a deep structure, universal structure, pattern inside the human being that shapes human thought, that shapes their relationships, the social bonds they share due to marriage. So, marriage it is just not a biological relationship, it is just like a social bonds, and that depends upon the deep structure of the brain, the universal pattern, the mental structure he talked about in elementary structure of kinship. Just like Margaret Mead did a lot of things. So Margaret Mead studied Samoa tribes. He studied about the Samoan girls and he said that they are very cool, stress free, and their behavior is dependent upon their culture, not on biology. So environment is not same everywhere. Girls have freedom, harmony, but the US teenagers have confusion, stress. He said that culture shapes the behavior. You got my point? You must got my point. So you have to see, like in you have to think in this way. Okay. So I must say that you read case studies. Okay, you then in only then you will be able to explain the concepts in a practical manner. So decent theory belongs to you know A.R. Radcliffe Brown. He was American. Myers Forte. So how the descent takes place in a society and how do they form society? That is, there is a lineage, there is a clan. When we talk of descent, we must talk of lineage and clan and how these descent is determined. There is unilineal descent. There is that the property are inherited either by the son or the daughter, or the property like Troberian Islanders they have matrilineal and Neors and Talensi have patrilineal. So bilineal or double descent, I mean to say that the descent takes place in both the father and the mother line. So there this descent theory tells us about their responsibilities, their duties, their marriage, their lineage. So alliance theory was given by Levi Strauss. He was belonged to France. So his focus was on that there is a bond of cooperation. So two groups share their
uh, brides. Okay, so and this forming a network forms a society of kinship. Okay, so descent theory, alliance theory says that about marriage, and descent theory talks about birth. All both descent theory and alliance theory are important in kinship studies. Descent theory view the kinship in terms of birth. Alliance theory views the kinship in terms of social bonds, social connections. So descent theory, both how the families are set up, how the families are bound, how the society run, how they are organized. So one a view from the biological point of view, another views through the cultural point of view. Okay. So this alliance and descent theory worked by Radcliffe Brown and alliance theory given by uh, Levi Strauss. Okay. So it is a may have son A, son B. Okay. So and son, the generation, they belong to the lineage, the clan in the father's line, and members of they have lineage and they share the property in that very lineage. So alliance theory means clan A is there, clan B is there, they both marry, takes place between them. So there is a sort of cooperation is there, exchange is there, relationship is there, network build up hota hai through this. So descent, there is something about born into the society and the clans formation takes place, lineage formation takes place. Okay. So in that similar way, this descent alliance, we there is a marriage takes place, an exchange takes place. It creates social relation. Okay, I like you have patrilineal descent in Neo-Talinsky and matrilineal descent in Trobarian Islanders. So the Myers-Forte studied Talinsky and A.R. Radcliffe Brown studied the Andaman Islanders. So the newer have patrilineal descent. So patrilineal descent means they belong to the clan of the father and they form a group, and what happens, they trace, they inherit the property through the father's line. Okay, so there is, they have leadership marriage rules lines. Talinsky, Myers Forte, Ghana, it's a patrilineal society, and what happens is there, so clan is there. Okay, there is a, it also control the rituals, the marriage, the social order and political authority. So you belong to your father's clan and that is defines your
property, identity, and social world. So, society is built on alliance. So, I gave you two examples, Australian Aborigines. So, there is a cross cousin marriages takes place. So, there is exchange of women. Okay, one clan gives a woman and later receives one. So marriage, there are rules in that, and they determines the how do they exchange the women. Amazonian tribes. So marriage to connect groups to form groups. I have given you examples. Descent means who you came from. आप कहाँ से आए हो, आपका बाप कौन है, मदर कौन है, ये आप किसके साथ ज्वाइन करते हो, आप कहाँ से आए हो और आप किसके साथ ज्वाइन करते हो. ओके, so these are approach are to study the kinship in a decent way or in the marriage manner. Okay, so you have to assign the lineage, the clan maintains the clan, the lineage, and these are structured inheritance and identity takes place. Marriage builds up relation. Anthropologists are essential to how society structuralism says that cannot explain how society actually works. So decent ties means marriage, blood relationship, they operate together. So descent determines whom you will have clan, and it also links clan. Okay. So it should be okay. So that is very much important. David Sakneder, Edmund Leach, Levi Strauss. You must understand it. Levi Strauss and Edmund Leach. They are structuralists. They study about the mental structures, the universal pattern to determine the thoughts process, elementary structure of kinship. And he discussed that, gave alliance theory, and descent theory was given by this Radcliffe Brown studied Andaman Islanders, and Newts, which is a matrilineal society, and in Alliance we studied about Australian Aborigines to explain the Alliance theory, as well as we studied these tribal societies like Australian Aborigines. So it determines your clan, your lineage. How modern anthropologists studied. So focuses on how different marriage rules that you have to marriage outside the group. It is based upon exchange, descent and exchange theory.
that is required. Okay, I have given you various examples. News, Kalinsky of Ghana by Myers Forte, and Levi-Strauss Australian Aboriginals, Amazonian tribes. That is where I have explained to you the various uh, case studies related with alliance theory and descent theory, types of descent, who gave descent theory, and what is the significance of descent theory and alliance theory to study the kinship, why there is a kinship is there, what do marriage role play, what do the descent, whether it is by patrilineal descent or matrilineal descent, or it is responsible for your identity or marriage rules, regulations is there. How will you regulate the society, social structure? We have studied the tribes like Talinsky News, and in Alliance Theory we have studied talked about Levi-Strauss, and he's explained the things too. I have used case studies of Australian Aborigines to explain alliance theory and Amazonian tribes to explain alliance theory. Yes, you have to understand the significance, the theories of it. So, likewise, I also discussed with you human genetics. I have explained to you why we study genetics in anthropology, how human beings are studied through anthropology, the evolution, how inheritance takes place, inheritance of genes takes place, inheritance of traits takes place, inheritance pattern, adaptation, variation, how it inheritance shapes our human health, evolution, human biology. You have to understand population differences, hereditary evolutionary adaptation. So, pedigree analysis we studied, we draw a family tree to show the traits that are responsible for genes that are causing disease. We studied hereditary studies. Twin studies, we studied the role of environment in causing the disease and the genes role in studying the heredities. Wow, they cause the particular trait like height, their intelligence, their disease. Twin study, monozygotic twins, dizygotic twins, foster child, explain, co-twin method. In cytogenetic method, we studied the chromosome structure, the functions, the number, abnormalities. Karyotyping means we take the photographs of chromosomes to identify the chromosome number, the chromosome sex. So, biochemical method,
cytogenetic method, twin study method, how the human genetics methods are there and their application, family study method, how the traits are inherited, inheritance pattern, the genes are inherited, the traits are inherited. We talk about genes and traits. We talk about the role of environment in showing trait, the role of genes in showing the trait, genetic basis or environmental basis. We study about monozygotic twins, dizygotic twins. We studied the children, biological children. We keep the children with the biological parents as well as with the adopted parents, and we studied the effect of the environment as well as the genetic factors. Okay, we studied the various hereditary studies, autosomal abnormalities. We studied the chromosomes. Okay, so observation of human chromosomes during cell division under microscope. We studied cytogenetic method. We have chromosomal analysis and we have karyotyping. Biochemical methods means it helps. So how proteins are variations caused by genes? Biochemical method. Immunological method, we studied the immune system of the body, human leukocyte antigens, how immune system, disease resistance, genetic diversity, modern molecular techniques, DNA technology. We studied the DNA, extract the DNA, sequence the DNA, and comparison of DNA to study forensic anthropology, parentage testing. So combining DNA from different organisms, recombinant DNA technology, polymerase chain reaction. Okay, how our traits are inherited. Height is inherited, intelligence is inherited, eye color is inherited, and how there is population variation and our humans are evolved. We studied the DNA technology. Yes, it is very much important. Yes, we studied the chromosomal analysis, the structure of the chromosomes, cytogenetic method, we studied karyotype analysis, chromosomal analysis. Okay, how population is different from other, how traits are passed. We studied pedigree analysis, how traits are passed. We studied twin studied, we studied genetic sequencing, why the population is different, why the ancestry. Okay, so it studies the disease, the evolution, कैसे हुआ, diseases कैसे हुई. Okay, हम DNA, we studied the DNA and we study about the ancestry, common ancestry. So mitochondrial DNA studies out of Africa theory, understanding human variation, studying human variation, why there is difference in trait, tracing migration, how migration is there, how people are moved and how people are mixed. Okay, hereditary disease, how there are certain disease which are common in certain groups like sickle cell anemia, thalassemia, DNA profiling. We studied the genetic structure, not just racial classification.
how sickle cell gene protects against malaria and lactose tolerant means there is link to dairy farming, how human adaptation takes place. Archaeogenetics use DNA from ancient bones and fossils to study the past population and migration. Okay, to connect the past, present, and population and cultural practices. What makes us human? So, yes, of course, there is application of genetics. Why? जेनेटिक्स से ही हम इंसानों की हिस्ट्री को समझते हैं, इंसानों के कल्चर को समझते हैं, हम ट्रेसिंग करते हैं एंसेस्टर्स की, हम उनमें अंदर क्यों कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक पर्टिकुलर जेनेटिक पॉपुलेशन में मिलते हैं, हम बताते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, रेशियल वेरिएशन से कैसे ह्यूमन वेरिएशन आती है, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझते हैं, माइग्रेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, डिसीजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, फोरेंसिक में हम डीएनए का एनालिसिस करते हैं, पॉपुलेशन की जेनेटिक्स और रेशियल स्टडीज हम करते हैं, अडेप्टेशन कैसे होती है इंसानों की हॉट क्लाइमेट में ये हम पढ़ते हैं, आर्चियो के हम डीएनए स्टडी करते हैं और हम पास्ट पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, आर्चियो जेनेटिक्स. Of course, guys, yes. So there is need to understand the human genetics. Okay, you must what is pedigree analysis? What is cytogenetic method? What is twin study method? Co-twin method? Foster child method? तो हम yeah we why there is traits are transferred, why certain diseases are run in the family like color blindness, how dominant trait, recessive trait, such linked trait are there in the population. Okay, we studied identical twins means same genes and fraternal twins means different genes. How much trait color comes from environment from the genes? Okay, we studied European population. We studied co-twin method. We studied chromosomes, chromosomal analysis. Means we look at chromosomes under a microscope. Karyotyping. We take pictures. So, how protein differences or enzymes detection takes place, how there is hemoglobin type that is linked to protein, blood group, ABO, RH, MN, hemoglobin. Okay, DNA, we studied DNA, we extract the DNA, we insert the DNA. So, Indus Valley skeletons helps trace ancestry. We to person identification, criminal investigation, paternity testing, extract DNA, sequence DNA, compare DNA, recombinant DNA technology.
It has lot of applications. Okay. So how humans are different from one another, how traits are inherited, how there is an evolution takes place. We studied these techniques, genetic methods, family study, biochemistry, immunology, and modern DNA. Okay, guys. So, cytogenetic method, biochemical method, immunological method. Population is there, risk is there. Paper B and paper 2 are to be studied. Paper 1 and paper 2 are to be studied in detail. So, it's studied to why some people have blood group A, some people have blood group B, HbA, HbS. How it depends upon the environment. Blood group A, how population differ. Okay, population genetics, disease screening. So how the HbS gene protect against the malaria? We studied the antibodies. We studied the antigens in our body to understand genetic variation. ओके, ब्लड टाइपिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, HLA स्टडी. सो immunological methods studied the immunological markers to trace population difference and history. Biochemical methods looks at proteins and enzymes to study the proteins. Okay, how do this biochemical method is different from immunological method? So biochemical method, we immunological method, we studied the marker. So there are various immunological markers like HLA, antibodies, and how do they behave in our body and how they are causing genetic variation, population variation, genetic diversity. Okay. So where we studied biochemical method, we studied the proteins and enzymes. So how do they adapt? How do they vary? How do they metabolism? So what proteins and what enzymes your gene makes? Okay. So biochemical method, we studied the what enzymes or proteins your gene make, and what immune markers do you have, like ABO blood group, like HLA, immunological marker, protein enzymes like ABO, RH, MN. Okay, how do they differ? क्या हमारे जीन्स कौन सी प्रोटीन्स बनाती है?
और हमारा इम्यून मार्कर्स कौन सा है हमारे अंदर, HLA सिस्टम कौन सा है, प्रोटीन्स क्या बनाती है हमारे जीन्स, इम्यून मार्कर्स क्या है हमारे अंदर। सो ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं। जो ब्लड ग्रुप बी है वो एशिया में ज्यादा देखने को मिलता है, अमेरिकन में ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप आपको ज्यादा मिलता है। हम इसमें डाइवर्सिटी को स्टडी कर पाते हैं, एंसेस्ट्री को स्टडी कर पाते हैं। सो ब्लड ग्रुप मीन्स अब डिफरेंट पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप्स डिफर होता है। तो आप एबीओ, आरएच, एमएन क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं। क्या प्रोटीन्स हैं, एंटीजेंस हैं आपके ब्लड रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर। कौन सा एंजाइम्स आपकी प्रोटीन्स जो है जीन्स आपका बना रहा है। बायोकेमिकल मेथड, ठीक है, हेमोग्लोबिन्स, सीरम प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ओके, इम्यून सिस्टम, HLA टाइपिंग डिफरेंट कैसे है, ओके, ये दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट बायोकेमिकल मेथड। हमारे अंदर जेनेटिक मार्कर्स, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स कौन कौन से हैं, HLA सिस्टम हमारे अंदर, ब्लड ग्रुप, बायोकेमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन सा प्रोटीन, एंजाइम्स हमारी जीन्स, जीन्स एंजाइम्स और प्रोटीन बनाता है जीन्स, दैट इज बायोकेमिकल मेथड। इम्यूनोलॉजिकल मेथड से हम पता चलता है कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कैसा है, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स कैसा है आपकी बॉडी में, किस तरह का HLA सिस्टम है, हीमोलिकोसाइट एंटीजन है, या फिर आपका जो बायोकेमिकल मेथड से आप पता लगाते हो कि आपके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। ओके, तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, तो ब्लड ग्रुप हो गया एबीओ, आरएच, एमएन सिस्टम, ओके, ओ जो है साउथ अमेरिकन में है, नेटिव अमेरिकन में है, एशिया में है। इससे हमें माइग्रेशन का पता चलता है, हमें पॉपुलेशन डिफरेंसेस का पता चलता है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब होता है कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है आरएच एंटीजन की, डी एंटीजन की। आरएच एंटीजन मींस डी एंटीजन की। आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। आरएच जो नेगेटिव जो है वो यूरोपियंस में कॉमन है, रेयर है एशिया में, अफ्रीकन में। अब एम एंटीजेंस है, एन एंटीजेंस है। एम जो है वो एशियन में ज्यादा है, एन एंटीजेंस जो है यूरोप में ज्यादा है। ओके, तो बेसिकली प्रोटीन्स है, ब्लड ग्रुप्स क्या है, प्रोटीन्स है आपके रेड ब्लड सेल्स में। इससे हमें एंसेस्ट्री का पता चलता है, माइग्रेशन का कैसे हुई होगी, कौन कहां से कहां गया होगा, कौन सी पॉपुलेशन कहां शिफ्ट माइग्रेट करी होगी, कौन सी एंसेस्ट्री हमारी रही है, कैसे एंसेस्टर्स ने अडेप्टेशन कैसे की होगी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो जैसे सिकल सेल, आपको बता दूं कि HBS ये जो है ये कैसे एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करता है, क्योंकि ये उन लोगों में ये पाया जाता है जो
पॉपुलेशन मलेरिया इन्फेक्टेड रीजन में रहती हो, क्योंकि ये जो है मलेरिया रेसिस्टेंट होता है सिकल सेल हेमोग्लोबिन, तो ये वहां पे मिलता है। ब्लड ग्रुप्स जो भी है ये भी हमें पता चलता है कहाँ पे ए ओ ब्लड ग्रुप कहाँ पे है, बी ब्लड ग्रुप कहाँ पे है, आर एच नेगेटिव जो है वो यूरोपियंस में है, आर एच पॉजिटिव जो है वो रेयर है, ठीक है। तो एम जो है वो एशिया में है, एन सिस्टम जो है एम एशिया में है, एन यूरोप में है। ओके, पता चलता है पॉपुलेशन के जेनेटिक्स का, जेनेटिक वेरिएशन का पता चलता है, एंसेस्ट्री का पता चलता है, पॉपुलेशन डिफरेंसेस का पता चलता है। ओके, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो क्या है, इसमें आप देखोगे कि ए एंटीजन है, आरएच एंटीजन है ना, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, आरएच एंटीजन है, एमएच एंटीजन है। ये क्या है या नहीं है? ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं आपके रेड ब्लड सेल्स में। प्रोटीन्स क्या चीज है ना? तो प्रोटीन्स क्या बना रही है, एंजाइम्स क्या बना रही हैं, वो हमें पता चलता है बायोकेमिकल मेथड से। इम्यूनोलॉजिकल मेथड से हमें पता चलता है कि एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, एचएलए सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता है। एचएलए टाइपिंग कैसे डिफरेंट है, एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, सीरम प्रोटीन्स कैसे डिफर है, ब्लड ग्रुप को हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमने करी है अपने टॉपिक्स में, हमने अपने अपने टॉपिक्स में इन चीजों को अंडरस्टैंड किया है। ओके, तो इनको समझा है हमने। ओके, तो अब देखा जाए कि कौन कौन सी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, अब आगे हमें समझो, अंडरस्टैंड करो, देखो वीडियोस को ध्यान से, एनालाइज करो, तभी आप एंथ्रोपोलॉजी को डीपली समझ पाएंगे। क्या है बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, एबीओ है, आरएच एंटीजन है, देन एमएन एंटीजन है, ये किस पॉपुलेशन में पाया जाता है, हम इसको स्टडी करते हैं बायोकेमिकल मेथड से। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में एचएलए टाइपिंग, आपको किस पॉपुलेशन ग्रुप में कौन सी एचएलए टाइपिंग मिलेगी, बायोलॉजिकल मार्कर्स क्या है, बायो इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स क्या है। ओके, तो ये इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हम हेरिडिटरी पैटर्न को स्टडी करते हैं, जीन फ्लो को स्टडी करते हैं, माइग्रेशन को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, हम अपनी एंसेस्टर की खोज कर पाते हैं, माइग्रेशन कहाँ से किस पॉइंट में हुई होगी ये हम स्टडी कर पाते हैं, हम डीएनए पढ़ते हैं, बोन्स का, फॉसिल रिमेन्स का, हम अपने एंसेस्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनके अडेप्टेशन को भी हम स्टडी करते हैं, उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बायो फीचर स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्ट स्टडी करते हैं। हमने स्टडीज की एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बाय लेवी स्ट्रॉस हमने पढ़ा है, हमने मार्गरेट मीड का कमिंग ऑफ एज इन सैमुआ पढ़ा है, हमने ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स को समझा है, हमें अमेज़ोनियन ट्राइब्स को समझा है, टेलेंस्की को समझा है, न्यूर्स को समझा है, हमने इनका किनशिप को समझा है, कैसे सिर्फ ब्लड रिलेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी कैसे किनशिप को समझने में हेल्प करती है, किनशिप है क्या, बेसिकली वेब है सोशल रिलेशनशिप का, हम अंडरस्टैंड करते हैं एक इंसान को दूसरा इंसान जो है वो कैसे वो अलग है, हमारे नोज कैसे अलग है, हमारा नेशनल इंडेक्स कैसे अलग है, हम इनको स्टडी करते हैं, हम अपने बॉडी को स्टडी करते हैं होलिस्टिक वे में, कैसे हम क्वाड्रूपेडलिज्म से बाइपेडलिज्म में आगे, कैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एस शेप्ड हो गया, हमारा पेल्विस ग्रिडल हमारा ब्रॉड बेसिन शेप्ड हो गया, कैसे ये सब चीजें जो है अंडरस्टैंडिंग में की है, हमने करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, समझ पाते हैं हम पॉपुलेशन को। अब रेस को क्या समझते हैं, रेस है क्या, बेसिकली रेस कुछ नहीं है, रेस एक हम अलग, हमारे नेशनल इंडेक्स अलग है, एक ग्रुप की नेशनल इंडेक्स अलग है, क्रेनियल इंडेक्स अलग है, उसके हेयर कलर अलग है, उसकी स्किन कलर अलग है, वो अपने आप को दूसरे ग्रुप जिसका स्किन कलर जो है वो डार्क हो सकता है, लाइट कलर हो सकता है, उसकी लंबी हाइट, हमने देखा है
कैसे? ओके, सो there has to, let us, we also studied about various linguistic and religious minorities. So we, because it is very much required, people have different languages, linguistic minorities, religious minorities. All these are related to shaping resources and power. So anthropologists wanted that culture should be preserved by preserving the language. You have to adopt policies, ensure equitable development. Okay. So how studies of Bodo, Naga and Gorkha communities in India, how cultural preservation motivates political demands and economic mobilization. So they have different okay. So must understand the various definitions of minorities. Okay. So minority status, let us see. That is very much required. रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है वो मैंने बताया था आपको वीडियोस में। ओके, तो आपको इनका, अब मिनोरिटीज है, इनको प्रोटेक्शन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो उसमें आते हैं आर्टिकल 29, 30 जो कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अपने वो कल्चर को प्रेजेंट कर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, उनको पॉलिटिक्स में उनको भागीदारी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, मिलती है उनको, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए उनको एक्सेस मिलता है। हाँ, हालांकि सोशल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बट इसको ओके स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है। ओके, तो एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में भी इनको प्रोटेक्शन दी गई है। ओके, तो अब पॉलिटिक्स में इनकी स्टेटस क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो इनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। अब ये लोग गरीब हैं, डिसएडवांटेज हैं, कुछ जो हैं ट्राई ट्रेड करते हैं, निश प्रोफेशन में हैं, बट इनको इकोनॉमिकली इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, सोशली इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, पॉलिटिकली इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से किसी का लैंग्वेज, किसी की कल्चर, किसी की रिलीजियस मिनोरिटी, लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, किसी का कल्चर, किसी की लैंग्वेज किस तरह से आपके राइट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या आपके पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, रिसोर्सेस को भाव कर सकता है।
तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एंथ्रोपोलॉजी का काम क्या है, यही तो इनका काम है ना। अब इनका देखा जाए कि सोशल स्टेटस क्या है, ओके, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो आपको समझना है। मैंने आपको बताया था डिटेल में, अब फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस, आगे सिख्स हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ओके। तो आप देखोगे कि आप इनमें सोशल स्टेटस क्या है। आप सोसाइटी में इनको एक्सक्लूड करके रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सक्लूजन है। अब माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में, लीगल प्रोटेक्शन है, जॉब्स में इनका नहीं है, इनके पास लैंड इनके पास नहीं है, ओके। कुछ लोग हैं जो करते हैं बिजनेस। लिंग्विस्टिक की बात करें, अब तमिल बोलने वाले नॉन तमिल स्टेट्स में क्या हो जाएंगे, लिंग्विस्टिक बन जाएंगे। गोरखास जो है वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटीज हैं। तो सोशल स्टेटस, अब मार्जिनलाइजेशन है इनका, सोशली कल्चरली प्रिजर्वेशन इनको करने की जरूरत है। डिमांड करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, लैंग्वेज को रिकॉग्निशन की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, गरीब है ना। तो अब इनकी अपनी आइडेंटिटी तो होती है। तो आर्टिकल 30 की बात करे जाए, जिसकी कोई अपना लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट देखता है उन सिटीजन्स को, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 33 कोई रिलीजियस मिनोरिटी है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटी है, उनके पास राइट है कि वो एजुकेशन ले सकें, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चला सकते हैं। और माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज होती हैं, वो बताती हैं कि कौन सी रिलीजन माइनॉरिटी स्टेटस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उसके लिए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, उनकी मार्जिनल सोसाइटी है, गरीबी है, लैंड नहीं है, जॉब्स नहीं है। तमिल लोग हैं, जैसे वो चले जाए नॉन तमिल स्टेट्स में, गोरखास वेस्ट बंगाल में मिनोरिटीज में है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है ना। तो इनको समझना है, अपनी अंडरस्टैंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। ये ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करते हैं, ये रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इनकी इकोनॉमिक स्टेटस डिस्कस, सोशली ये थोड़े से पिछड़े हैं, एक्सक्लूडेड लोग हैं, डिस्क्रिमिनेशन है इनके लिए, इनको ये पॉवर्टी तो है ही है, सोशली भी मार्जिनलाइज्ड है, इनको स्टेटस इंप्रूव करने की जरूरत है, ओके। तो आपके पास पता होना चाहिए, ओके, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। यस, तो आपको समझना है इस चीज को। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी जाती है, चैलेंजेस हैं, है ना। कल्चर की प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनका कल्चर खत्म हो रहा है, ऑटोनॉमी मांगते हैं वो, ठीक है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं, ओके। तो माइनॉरिटीज जो है
स्पेशल इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए पॉलिटिकल लेवल में। तो यही चीजें तो इनके कितने पावरफुल हैं होंगे, ये डिपेंड करता है लिंग्विस्टिक में, रिलीजियस मिनॉरिटीज पे कितने रिसोर्सेस की ये एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो जॉब्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो क्या इनकी एक्सेसिबिलिटी है, क्या इनकी स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर, कौन कौन से, मैं बताऊं आपको, तमिल स्पीकर्स हो गए, मराठी स्पीकर्स हो गए, गुजराती स्पीकर्स हो गए, पंजाबी स्पीकर्स हो गए। हर स्टेट में मल्टीपल लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है, हर स्टेट में लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है। अब रिलीजियस मिनोरिटीज की बात करें, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीस हैं, ज्यूस हैं। ओके, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वो लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज भी हैं और रिलीजियस मिनोरिटीज भी हैं, जैसे मुस्लिम तमिल्स, क्रिश्चियन तमिल्स। इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है इनके बारे में, कैसे इनको जॉब चाहिए, एजुकेशन की एक्सेस चाहते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में ये अपने राइट्स चाहते हैं, ये मैंने बताया। इसको समझना है तभी तो आप उनके कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एडवोकेट कर सकते हो, इकोनॉमिक उनकी कंडीशन को आप गवर्नमेंट के सामने रख सकते हो, इंक्लूसिव पॉलिसीज के लिए आप एडवोकेट कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहता है कि इनको ऊपर उठाने की जरूरत है, इनके इनके अंदर कौन कौन से वो ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रू करने की जरूरत है। ओके, तो इनको हम कैसे ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशंस इनको, जैसे हम स्टडीज करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे बोडोस, नागास, गोरखास जो है, इन कम्युनिटीज को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि इनकी सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो समझ ही नहीं जाती। तो एथनिक और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका अपना एक ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, कल्चर है, लैंग्वेज है, और इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स है, इकोनॉमिक डिमांड्स हैं। तो बोडो कम्युनिटी है असम में, तो इनका है कि हमें ऑटोनॉमी दे दी जाए, हमारी सेल्फ गवर्नमेंट हमें दे दी जाए, उनके लिए एजुकेशन के लिए उनका काम होना चाहिए, लाइवलीहुड उनको देनी चाहिए, हेल्थ उनको देनी चाहिए। ये असम में है, बोडो लैंग्वेज है इनकी। ओके, नागा कम्युनिटी नागालैंड की है, तो ये भी इनका भी कल्चर एक अलग है, मीन्स फेस्टिवल्स अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, ये भी ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। गोरखास जो है, इनके कल्चरल नेपाली लैंग्वेज है इनकी, ये भी बड़ा कुछ डिमांड करते हैं कंट्री से। कल्चरल आइडेंटिटी है इनकी, लैंग्वेज है अपनी, फेस्टिवल्स इनके अपने हैं, हमारी मार्शल कंडीशंस हैं। तो इनके लिए काम करता है एंथ्रोपोलॉजी, दिन रात जेनेटिक स्टडी की जाती है। जीनोम प्रोजेक्ट को किया था लॉन्च, हमने जीन्स को समझने थे, अंडरस्टैंड करना था, एंसेस्ट्री को अंडरस्टैंड करना था, पॉपुलेशन की जीन्स की हमने मैपिंग करनी थी। इससे हमें डिजीज का भी पता लगाया, हमने वेरिएशन का भी पता लगाया। हम इसमें जीन्स को हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेचुरल डिजास्टर जब हो जाता है कोई, तो लोग गुम जाते हैं, तो उनके पहचान नहीं होती, तो उनको पहचान करने के लिए डीएनए टेस्टिंग की जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले एयर क्रैश में सारे लोग जल गए थे, तो उनका डीएनए स्टडी करके ही उनको आइडेंटिफाई किया था। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अब जो है
उनकी लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज कौन सी होती है जिनकी मदर टंग जो है डिफर है, स्टेट की जो मेजोरिटी लैंग्वेज है उससे डिफर है उनकी मदर टंग। तो माइनॉरिटीज कौन से हैं ग्रुप्स, वो हैं जिनकी मदर टंग जो है वो डिफरेंट है मेजोरिटी लैंग्वेज से। तो रिलीजियस मिनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करती है नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज इंडिया। ओके, अंडरस्टैंड करना है, समझोगे आप इसको तभी आपको ये चीजें समझ आएगी। तो मैं आपके सामने ये कोई भी टॉपिक रैंडमली पिक कर रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही जरूरी है आपको रिवीजन कराना, मैं रिवीजन करा रहा हूं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड क्या है बेसिकली एथनिसिटी का, मैंने बताया कि अपना लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, यूनिकनेस है, तो वो अपने आप को एथनिक ग्रुप मानते हैं। तो जैसे बोडोस है, असम में गोरखास है, वेस्ट बंगाल में नागास है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एथनिक कम्युनिटीज हैं। जब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिसोर्सेस नहीं दिए जाते, ऑटोनॉमी मांगते हैं, नागालैंड में बोडोस मांगते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन मांगते हैं, गोरखालैंड डिमांड करते हैं। तो इम्पैक्ट क्या हुआ एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से? एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो गए, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उससे क्या हुआ, ऑटोनोमस काउंसिल्स बनी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ मिनॉरिटीज का। अनरेस्ट क्या है, अब उनसे लैंड छीन जाती है, उनके घर छीन दिए जाते हैं, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही, उनको एनक्रोचमेंट हो रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे, मार्जिनलाइजेशन है। तो हमने देखा मुंडास का रिवोल्ट, संथल का रिवोल्ट, गौंड की अपराइजिंग जो हुई थी हमने देखी थी ब्रिटिश रूल में। अब ये चाहते हैं ऑटोनॉमी, चाहते हैं रिकॉग्निशन, चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, चाहते हैं। रीजनलिज्म क्या है, अपनी लैंग्वेज को अपना अपनापन, लॉयल्टी दिखाना, रीजन को दिखाना लॉयल्टी, ठीक है, लार्जर नेशन को के बजाय रीजन को लॉयल्टी दिखाना, दैट इज रीजनलिज्म। तो ये ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। कल्चर को प्रिजर्व करने की बात होती है, गोरखालैंड हो गया, बॉर्डरलैंड हो गया असम में, नागा ऑटोनोमस काउंसिल्स हो गया गोरखालैंड असम में, ठीक है। तो सीडो ट्राइबलिज्म क्या होती है, कुछ ग्रुप्स जो है अपने आप को ट्राइबल्स होते हैं, बट सच में वो रियल में वो होते नहीं है, बट सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट लेने के लिए, तो जेन्युइनली वो होते नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअल ट्राइबल ग्रुप्स में और जो क्लेमेंट्स कर रहे हैं। तो सोशल चेंज क्या आई है ट्राइबल्स के अंदर? ओके, तो अब बेसिकली ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को कंट्रोल किया, एजुकेशन प्रोवाइड की, तो इससे क्या हुआ, उनका ट्रेडिशनल जो ऑटोनॉमी थी, वो उनको जंगलों का राजा कहा जाता था, वो राजा नहीं रहे, उनको बेसिकली सैवेज कहा जाता था, उससे उनमें अनरेस्ट हो गई और उनके वो, तो ये अंडरस्टैंड जरूरी है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा, उनके लिए। जैसे बोडोलैंड डिमांड करते हैं असम में, नागालैंड डिमांड करते हैं, नागास में डिमांड करते हैं नागालैंड में। तो क्या टेंशन हो जाती है इससे, इससे नागा ऑटोनोमस काउंसिल्स डिमांड करते हैं, बोडोलैंड असम में डिमांड करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं, ठीक है। वो कल्चर की को बचाना, रख रख के रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिसोर्सेज जो है फॉरेस्ट के हमारे हवाले किए जाएं। तो फॉरेस्ट के टाइम पे तो बड़े उनमें कॉलोनियल एरा में तो उनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ, ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम किए गए, ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई गई, मॉडर्नाइजेशन किया गया, उनको बहुत काम हुआ, ठीक है।
तो चैलेंजेस अभी भी हैं। एथनिकसिटी की बात करें, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, रीजनलिटी एंड ऑटोनॉमी की डिमांड करें, सोशल चेंज की बात करें, ठीक है, सीरो ट्राइबलिज्म की बात करें, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने बताया आपको, नागालैंड हो जाए, जहाँ बोडोलैंड हो जाए, इधर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो जाए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अपने आप को वो समझते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, ब्रिटिश के टाइम से हमें जंगलों से बेदखल कर दिया, हमारे एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया, उनको कल्चर को अलग उनका था, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग समझा, लैंग्वेज उनकी माइनॉरिटी थी, इसलिए उन वो मेन स्ट्रीम ने वो अपने आप को जोड़ नहीं पाए, या उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कार्य नहीं किए। तो हालांकि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, एकलव्य स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हेल्थ हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, अब जो भी आगे काम हुआ है, बट अभी भी काफी ज्यादा वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप देखोगे कि किस तरह से उनको एक्सक्लूजन उन्होंने फील किया, सोशली इकोनॉमिकली वो अलग ही रहे। नागा इंसर्जेंसी कह लीजिए, गोरखालैंड की बात कह लीजिए, बोडोलैंड कह, बोडो मूवमेंट कह लीजिए, नागा इंसर्जेंसी कह लीजिए, गोरखालैंड की कह लीजिए, तो कैसे पॉलिटिक्स इसमें आता है उसको रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उनके लिए एजुकेशन लिटरेसी इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ओके, तो अब जो है बोडोलैंड है, नागालैंड है, किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, एथनिसिटी क्या है, आपका एक शेयर्ड कल्चर है, इंसेस्ट्री है, कल्चर है, हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, तो वो एथनिसिटी है, इसके साथ एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, इंसर्जेंसी होती है, हुई है, इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रखा गया, इनके लिए कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनका कल्चर प्रिजर्व के लिए बोलते हैं, ये सेल्फ रूल को एडवोकेट करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल्स डिमांड करते हैं। ओके, तो उनकी जो ऑटोनॉमी थी वो डिस्टर्ब हो गई, ट्रेडिशनल इकोनॉमी उनकी डिस्टर्ब हो गई, सोशली और इकोनॉमिकली वो मार्जिनलाइज्ड हो गए, इसकी वजह से मुंडा रिवोल्ट हुआ, संथल रिवोल्ट हुआ, तो ये सोशल चेंज आया ट्राइब्स में। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ, की टेकअवेज हमने क्या लिए, सीडो ट्राइबलिज्म क्या है, ऐसे ग्रुप्स जो कि ट्राइबल का स्टेटस डिमांड करते हैं और वो असल में ट्राइब्स होते नहीं है, वो सोशल इकोनॉमिक एडवांटेज चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स चाहते हैं, सेल्फ रूल चाहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं, ठीक है, लॉयल अपने आप को बताते हैं टू पर्टिकुलर रीजन, उसको बोलते हैं रीजनलिज्म, लैंग्वेज को, कल्चर को। ओके, तो आप देखोगे कि लैंड का राइट्स उनसे ले लिए गए, फॉरेस्ट के राइट्स उनके ले लिए गए, एजुकेशन उनके लिए नहीं दी गई, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दी गई, तो एनक्रोचमेंट हुआ डेवलपमेंट्स के नाम पे, उनको रिहेबिलिएट नहीं किया गया प्रॉपरली। तो ये एथनिसिटी क्या है, ये हमने समझा, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए उनके लिए, ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट से और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए वो देखना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में उनको ऑटोनोमस काउंसिल्स बने उनके लिए। ओके, ऑटोनोमस काउंसिल्स बने, जैसे नागा ऑटोनोमस काउंसिल्स है, बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, ओके, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, ट्राइबल वेलफेयर है, रिजर्वेशन है, एजुकेशन है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। ओके, कुछ को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश की गई। ओके, अनरेस्ट जो है वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से रेस्ट है, डैम्स बन रहे हैं,
माइंस माइनिंग हो रही है। ओके, संथल ने तो क्या हुआ, एक्सप्लोटेशन हुई थी उनकी, लॉस ऑफ मुंडा अपराइजिंग हुई, संथल अपराइजिंग हुई। ओके, तो ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, बोडोलैंड की डिमांड की जाती है। तो ये चाहते हैं अपना डिमांड को फुलफिल कराना, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपने इकोनॉमी को ये एनहांस करना चाहते हैं। ये लैंड राइट्स के खिलाफ ये बोलते हैं। ये बोडोलैंड की बात करें, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करें, गोरखालैंड की बात करें हम, ठीक है, बोडोलैंड क्या है, ठीक है, गोरखालैंड क्या है, क्या है। ओके, तो बोडोलैंड, गोरखालैंड ये क्या है। तो और जो ट्राइबल एडवाइजरी, जो आप देखेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे इनका बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, ऑटोनोमस काउंसिल्स है, इनके बारे में ऑटोनोमिक काउंसिल्स क्या है। ओके, ट्राइबल ऑटोनोमिक काउंसिल्स, नागा ऑटोनोमिक काउंसिल्स क्या है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, नागा ऑटोनोमस काउंसिल्स क्या है, बोडो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन क्या है। यही तो रीजनलिज्म है, यही तो कॉन्फ्लिक्ट्स है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसी के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, उन्होंने रेबेल्ड किया, बोडोलैंड रिबेल की बात करें, संथल रिबेल्ट की बात करें, तो अब ये क्या है, एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बनाया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तहत ये अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, बोडो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ दार्जिलिंग और सराउंडिंग एरियाज है, ठीक है, नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाएगी, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिविटी, गोरखालैंड, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, बोडोलैंड गोरखालैंड टेरिटोरियल रीजन, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, नागा ऑटोनोमस काउंसिल, नागा ऑटोनोमस काउंसिल जो है बनाया गया है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लोकली वो एजुकेशन को मेंटेन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस उनको दिए गए, चाहे वो टेरिटोरियल रीजन्स हैं, ऑटोनोमस काउंसिल्स है, सेमी ऑटोनोमिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, तो एरिया, ग्रुप, डिमांड, पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको समझना है। यही हमने देखा कि क्या है ये सब चीजें, क्यों हैं झगड़े, तो ये आपने इनको समझना है कि ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है। ओके, बोडोलैंड, गोरखा लैंड ऑटोनोमस, नागा ऑटोनोमस काउंसिल्स है। ओके, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, गोरखालैंड, बोरखालैंड, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। ओके, वेयर कहाँ पे है, ठीक है, बोडोलैंड कहाँ पे है। ओके, तो तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, बोडोलैंड, गोरखालैंड, नागा ऑटोनॉमस काउंसिल्स है। तो इनका काम क्या है, आइडेंटिटी को बनाए रखना है, हम सबसे अलग है, हम सबसे जुदा है। ओके, तो अभी क्या है, समझना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बोडोलैंड क्यों बनी, वो चाहते हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो अपना सेल्फ रूल वहां पे बनाना चाहते हैं।
वो मार्जिनलाइजेशन जो हुई है उनके साथ एजुकेशन में, जॉब में, वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं। इसलिए वो डिमांड करते हैं नागालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, नागा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, बोडोलैंड नागा ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई गई। ओके, बोडो नागा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स बनाई गई। ओके, तो आप देखोगे कि आप इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, इनके लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है वहां पे। इनको चाहिए क्या, इनको कल्चर को, आपको इनके कल्चर को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इनके कल्चर को बॉस के आइडिया जो था कल्चरल रिलेटिविज्म, उसको उसके जरिए, उसके आइडिया के जरिए के थ्रू हमें बोडोलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी को समझने की जरूरत है। यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म काम आ सकता है। हमें जो नागालैंड है वहां पे हम फ्रांस बॉस के कल्चरल रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट को के जरिए हम बोडोलैंड को स्टडी कर सकते हैं, नागालैंड को स्टडी कर सकते हैं, और गोरखालैंड को स्टडी कर सकते हैं, और इनकी डिमांड्स को एड्रेस कर सकते हैं। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिसोर्सेस को लेके है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, आइडेंटिटी को लेके है, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तभी जाके इस रीजन को हम शांत कर पाएंगे। इस रीजन में हम पीस को देखने के लिए हम जो इतने दिनों से हम मुशक्कत कर रहे हैं, वो हमें रियल में पीस हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस करे हैं हमने टॉपिक्स को। ठीक है, तो आप देखोगे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे रीजनलिज्म को समझता है। एंथ्रोपोलॉजी है जो कि कहता है कि जो नागालैंड है, बोडोलैंड है, ये जो लोग हैं इनका अलग कल्चर है, अपना कस्टम है, तो अपना रिलीजन है, तो इनमें रीजनलिज्म की भावना आती है। कम्युनलिज्म, अपनी कम्युनिटी को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके लिए वो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खराब है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले, बोडोलैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, संथल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमने देखा कि कैसे वहां पे वो टेरिटोरियल काउंसिल बने, नागा ऑटोनोमस काउंसिल बना, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना, हमें देखा हमने गोरखालैंड बनी। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इसको समझ सकते हैं। कैसे एंथ्रोपोलॉजी ने ही इसको समझा, कैसे वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं रीजनलिज्म को समझने में, कम्युनलिज्म को समझने में। हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख में आपस में जो टेंशन्स है, म्यूचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि इसका हिस्ट्री भी है, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी हमको समझने की जरूरत है। इसके जो मीडिया का रोल है वो भी समझने की जरूरत है। पॉलिटिशियन जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। ओके, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चरल रिलेटिविज्म, एमिंग एटिक अप्रोच लगा के हम इसको समझ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज में हम देखते हैं कैसे कल्चर को स्टडी करते हैं, कैसे कल्चरल एवोल्यूशनिज्म हुई, डिविजनिज्म हुई, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, न्यू एवोल्यूशनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, इनके सिंबल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनके कॉग्निटिव को समझ सकते हैं कि क्या है इनका कॉग्निशन, क्या है इनका मेंटल स्ट्रक्चर, पब्लिक स्ट्रक्चर क्या है इनका, जो है क्या है वो, उसके जरिए हम इनके इनका रीजनलिज्म को समझ सकते हैं। अपने ही क्यों इनकी अटैचमेंट है अपने कल्चर के साथ, अपने सिंबल्स के साथ, क्यों है अटैचमेंट, फूड के साथ, ड्रेस के साथ क्यों है अटैचमेंट। ओके, तो आपका जो एक कल्चर है, उनका अपना एक खान पान है, उनका पहनावा है, उनकी लैंग्वेज है, उनका एरिया है, तो ये एक भावना लाती है किसकी, रीजनलिज्म की। तो कल्चर की स्टडीज करता है डिफरेंट रीजनल आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क किए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स किस तरह से, कि रीजनल प्राइड जो है कैसे ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स का रूप ले लेती हैं। ओके, तो एम एन श्रीनिवासन है, बैरियर एल्विन है, किस तरह से इन्होंने समझा, उनके रीजनलिज्म को समझा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा,
कि किस तरह से उनकी कल्चर्स की स्टडी की, उनकी फील्ड वर्क किया वहां पे, उनको लिंक किया कि किस तरह से रीजनलिज्म को लिंक कर दिया उन्होंने अंडर डेवलपमेंट के साथ, मार्जिनलाइजेशन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ उसको रिलेट करके रख दिया इन्होंने। तो इसमें हम वेरी रेलिवेंट की कंट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो अपने रिलीजन के प्रति आप लॉयल्टी दिखाते हो, दूसरे के रिलीजन को आप हीन भावना से देखते हो। ये कारण क्या है कि किस तरह से एक आपके जो रिचुअल्स होते हैं, आइडेंटिटी होती है, वो एक बाउंड्री सेटअप कर देती है दो रिलीजन्स के बीच में। तो कम्युनल का आप रिसोर्सेस के लिए compete करते हो, इनइक्वालिटीज है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है। ओके, तो स्टडीज की, कल्चरल हार्मोनी के ऊपर स्टडीज की, कल्चरल मिक्सिंग के ऊपर स्टडी की। ओके, तो एंड्री बिटेली ने तो स्टडी की, इंडियन विलेजेस को स्टडी किया, किस तरह से वो को एग्जिस्ट करते हैं बड़े सारे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किस तरह से एथनिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ट्रैक किया, कैसे अपने वो पॉलिटिकली वो अपने आप को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। ग्रास रूट का व्यू क्या है, एवरीडे स्ट्रगल क्या है उनका, ठीक है। नागा मूवमेंट्स को स्टडी किया था, ठीक है। एबेरियल एल्विन ने नागास को स्टडी किया था, झारखंड मूवमेंट को स्टडी किया था, बोडोलैंड गोरखैंड मूवमेंट्स को स्टडी किया था। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके, ओके, आपको क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज आपको करनी है, कैसे रीजनलिज्म को अंडरस्टैंड करता है एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी करता है, उसकी कल्चर को स्टडी करता है, कम्युनिटीज को स्टडी करता है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज को स्टडी करता है, उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेटस को स्टडी करता है, एथनिक मूवमेंट्स जो हुए थे, कन्फ्लिक्ट्स जो हुए थे वो स्टडी करता है, कॉलोनियल इरा का टाइम को स्टडी करता है कि किस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो ये बताता है कि ये सिर्फ इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका आइडेंटिटी से भी लेना देना है, इसका कल्चर से भी लेना देना है, इसका सोशल इनइक्वालिटी से भी लेना देना है। तो आप उनका एवरीडे लाइफ समझते हैं, उनका एस्पिरेशन समझते हैं। तो पीस बनाना काम है, पॉलिसी बनाती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आपको एक्सप्लेन करता है। ओके, तो रीजनलिज्म का कारण क्या है वो बताता है, कम्युनलिज्म का कारण क्या है वो बताता है कि कल्चर्स अलग है, लैंग्वेज अलग है। ओके, तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, एक बेसिकली एक सोशल सिस्टम है बेसिकली ये। तो रीजनलिज्म की स्टडी करते हैं, रीजनलिज्म का ओरिजिनेशन करते हैं। तो जब आप ओरिजिनेशन पढ़ते हो रिलीजन का, तभी आपको पता चलता है कि क्यों कम्युनलिज्म है, क्यों इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एथनिक मूवमेंट्स क्यों है कि क्यों एथनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो वो अपने डिस्क्रिमिनेशन के हो रहे जो है उसको वो एड्रेस कराना चाहते हैं, अपने आप को वो दुनिया से ऊपर वो रखना चाहते हैं, अपने चीजों को वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल स्टडीज करता है, एथनोग्राफिक स्टडीज करता है। ओके, तो ओके, तो आप देखोगे, आप रीजनलिज्म के लिए कौन सी स्टडी की, कम्युनलिज्म के लिए कौन सी स्टडी की, एथनिक मूवमेंट्स के लिए कौन सी स्टडी की, वो आप कोट करो इसमें, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कौन कौन सी स्टडीज हैं। ओके, तो आप, मैं बताऊं आपको, है ना। आप रीजनलिज्म की बात करो तो एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी की थी, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया स्टडी किया था एलपी विद्यार्थी ने। ओके, तो उसने कहा कि
रेट किया उसने रिलीजियस सेंटर के साथ, कल्चर सेंटर के साथ। ओके, तो किस तरह से उनका जो उनको यूनाइट करता है, किस तरह से रीजनल उनकी आइडेंटिटी भी है, ये रिलीजन उनका जो है ट्रेडिशनल उनको यूनाइट करके रखता है, जो रीजनली जो रिलीजन है उसको यूनाइट करता है, कैसे उनको रीजनलिज्म की फीलिंग दे रहा है और उनको यूनाइट करके रखने की कोशिश कर रहा है, उनको फीलिंग दे रहा है। ओके, तो एमएन एलपी विद्यार्थी ने स्टडी किया, इन्होंने रिलीजनलिज्म जो है उसको रिलेट किया कल्चर आइडेंटिटी के साथ, रिलीजियस सेंटर्स के साथ। तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता हुआ मानते हैं, अपने कल्चर सेंटर्स को बिलोंग करता हुआ मानते हैं, तो इसलिए उनमें रीजनलिज्म की फीलिंग आती है। वेरियल एल्विन ने नागास के बारे में पढ़ा, बेगास के बारे में पढ़ा। ओके, तो इसीलिए जो वो है उनका कल्चर कैसे उनका वो मांगता है कि हमें रीजनलिज्म उनको क्रिएट कर रहा है उनके माइंड में। एम एन श्रीनिवासन ने बताया कि उनकी जो लोकल रीजनल आइडेंटिटीज हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेज है, तो ये कम्युनलिज्म के ऊपर स्टडीज की हैं एलपी विद्यार्थी ने। ठीक है, तो कैसे रीजन को रिलेट कर दिया इसने एलपी विद्यार्थी की स्टडी से, वेरी रेलिवेंट की स्टडी से, एम एन श्रीनिवासन की स्टडी से। ओके, अब आप देखोगे एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करें। ओके, तो अलग अलग जो है इन्होंने कहा कि ये कल्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी लैंग्वेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका रिलीजन, उनके ट्रेडिशंस, उनका, इसीलिए वो फाइट करते हैं अपने डिग्निटी के लिए, रिसोर्सेज के लिए वो फाइट कर रहे हैं, दैट इज वाई। तो आप समझोगे कि किस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, रिलेट करना है, समझना है। ओके, तो सीवी हैमनडॉर्फ जो है उन्होंने स्टडी की, नागास के ऊपर स्टडी की, वेरी रेलिवेंट ने, एलपी विद्यार्थी ने स्टडी की, बताया कि वो कल्चर होने की वजह से उनमें यूनिटी हो गई, रीजनलिज्म फीलिंग आ गई। तो तो आप देखोगे किस तरह से, अगर बैरियर एल्विन की स्टडी को ही कोट करें तो नागास जो है वो नागा ऑटोनॉमस काउंसिल्स की डिमांड करते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स वहां पे हुआ। ओके, सीवी हेमनडॉर्फ की बात करें, नेग नागास के बारे में स्टडा कि कैसे उनका अपना जो कल्चर है वो एथनिक मूवमेंट्स को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, एन के बॉस ने कहा, हिंदू सोसाइटी की स्ट्रक्चर को समझा कि ओके, वेरियन एल्विन ने स्टडी की, कम्युनलिज्म के ऊपर स्टडी किया, टी एन मदान ने क्या करा, रिलीजन इन इंडिया वर्क किया, उसमें कहा कि किस तरह से रिलीजन की वजह से उनकी सोशल लाइफ है। ओके, ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए भी काम करता है। रीजनलिज्म होगा क्या, बेसिकली कम्युनलिज्म कैसे आएगा, रिलीजन इन इंडिया स्टडी की तो रीजनलिज्म जो है ये करता है पॉलिटिकल
मोबिलाइजेशन। ओके, तो इसका जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका एक इकोनॉमिक रूट्स भी है, सोशल रूट्स भी है। एंड्री बिटेले ने कहा स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया एंड्री बिटेले ने कहा कि रिलीजियस का मतलब सिर्फ खेत अलग होना नहीं है, और भी रूट काज है, सोशल काज है, इकोनॉमिक काज है, वो गरीब भी तो है। टीएन मदान है, रिलीजियन इन इंडिया, उसने कहा कि रिलीजियन इन इंडिया क्या है बेसिकली, कि रिलीजियन जो है कैसे उनकी सोशल लाइफ में आ जाता है और कैसे उनके रिलीजियन को एक कम्युनिज्म की फीलिंग देता है। ओके, चेंजिंग सोसाइटी में कम्युनलिज्म जो आ जाता है, क्या क्या स्टडीज हुई, बिल्कुल स्टडीज हुई। तो ग्रेट एंड लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, विलेज लेवल के अंदर जो कम्युनल हार्मनी होती है, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन का वहां पे समन्वय होता है, वहां पे देखने को मिलता है किस तरह से। तो वो जो है वो उनको कहीं ना कहीं वो उनको कम्युनल हार्मोनी लाती है। कम्युनल हार्मोनी की बात हम करते हैं, ये स्टडी करते हैं किस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है हम कम्युनल हार्मोनी को स्टडी करते हैं विलेज लेवल पे। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन मॉडल रॉबर्ट रेडफील्ड का, ठीक है। टीएन मदान की बात करी जाए, ओके, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से रिलीजन जो है इंटीग्रेट होता है सोशल लाइफ में, और जो है बेसिकली आगे ये वर्कआउट करता है, रिलीजन जो है आगे वर्कआउट करता है। ओके, तो आप इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट दिया, तो आप देखोगे कि आप जो है देखोगे कि लिटिल ट्रेडिशन में क्या आ गया, जो गांवों के अंदर के जो बिलीफ लेवल्स हैं, ग्रेट ट्रेडिशन आ गया अलीट का कल्चर, लिटिल ट्रेडिशन आ गया लोकल कल्चर, फॉक कल्चर। तो ये रूरल और अर्बन के बीच में जो है एक सोशल हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी भी इंटीग्रेट करता है। ओके, तो ये बेसिकली एम एन श्रीनिवासन, एलपी विद्यार्थी, मिल्टन सिंगर ने इनके बारे में स्टडी किया। किन के बारे में स्टडी किया? लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में स्टडी किया रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो टीएन मदान ने क्या बताया कि आपके जो रिलीजन है, आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसे, आपकी मैरिज, फैमिली, कम्युनिटी लाइफ, पॉलिटिक्स, तो रिलीजन जो है सोसाइटी को इंटीग्रेट करती है। तो अगर हम इसके पॉलिटिसाइज किया जाए तो ये क्या बन जाता है, डिवीजन का काम बन जाता है। ये कहा किसने? रिलीजन इन इंडिया स्टडी की टीएन मदान। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, हॉली और ईद, ये कम्युनिटी बिल्डिंग करती है और बाउंड्री मार्किंग इवेंट्स हैं। ओके, टीएन मदान की बात करें, रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें, ओके, तो इन्होंने स्टडी किया लिटिल ट्रेडिशन को, ग्रेट ट्रेडिशन को, इनइक्वालिटीज को अंडरस्टैंड किया। ओके, तो अब ये देखा जाए कि हमने समझना है। ओके, तो आप देखोगे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नाम सुने, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, स्कॉलर्स के नाम हम बात कर रहे हैं। ओके, ओके, आप इसमें कंटेम्पोररी जो है ना, वेरियस कंटेम्पररी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया की आप एग्जांपल दीजिए इसमें। तो उनका ट्राइबल्स के ऊपर क्या असर पड़ा, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर क्या असर पड़ा। ओके,
तो ये आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तभी बस आप टॉपिक को अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे। जैसे मैं बताऊं, डैम, सरदार सरोवर डैम, तेहरी डैम, उत्तराखंड में जो बना तेहरी डैम, कोल की माइंस जो बनी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, तो इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।